Hello students, let's continue with the topic that we were discussing in the last lecture. Children, we have been discussing about the demand for money, and I've been explaining you about two different approaches that we have. The first one was called as the classical approach, जहाँ पे transaction demand for money was actually given a lot of importance. Then children, we switch on to what is called as the Keynesian approach. Now, according to Keynes, children, I told you there are three different motives why people demand money. The first one was called as the transaction motive. Second वाला था बच्चों लोग precaution motive, और तीसरा वाला था speculative motive, right? Now, the demand for money for transaction and precaution motive, children, is income elastic. That means it is directly proportional to the income that you earn. If you earn more income, then a demand for transaction and precaution will be more. If you earn less income, then a demand for transaction and precaution is going to be less, right? Whereas the demand for money for speculative purpose, children, is interest elastic. That means it is directly proportional to the rates of interest that we have. So if the market rates of interest change, then the demand for speculative motive will also undergo changes, right? Then I told you how the demand for money for transaction and precaution purpose, the diagram will actually show upward slope, right? Whereas when we talk about the demand for money for speculative motive, then the demand for money curve will slope downwards. From that, children, we come to a very important concept. Sometimes it's asked as a short note. It's known as liquidity trap. Liquidity trap का मतलब क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे? तो we have two different concepts here, children. One is like the rate of interest. क्या था ये? Rate of interest. On the other hand, children, we have the speculative demand for money. Now, there's a different form of relationship between the two. जैसे कि for example, when the rate of interest is very low, ठीक है, तो there is some मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि rate of interest अगर कम होगा तो demand for speculative motive will be more. If the rate of interest is high, then the demand for speculative motive will be less. अच्छा, क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक लोगों के पास जब पैसा होता है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, तो फिर वो बैंक्स में अगर रखने का कुछ मतलब नहीं होता, देन पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू सम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड शेयर्स. बट इफ द बैंक्स आर पेइंग अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वहां पे फिक्स इंटरेस्ट रहेगा बच्चों लोग, रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, तो लोग क्या करते हैं, all the money they will put it into the bank and they are not ready to take the risk into the speculative market. ठीक है? So what does it mean, children? That so according to Keynes, at a very low rate of interest, the speculative demand for money will become perfectly elastic. Keynes के हिसाब से बच्चों लोग the rate of interest never falls below 2%. Keynes क्या बोलता है कि rate of interest कभी भी 2% के नीचे नहीं जाता है बच्चों लोग. अच्छा, and 2% is could be actually the lowest interest rate that can exist, right? Below which the market rate of interest could not decline. मतलब बच्चों लोग आपको याद रखना है कि rate of interest कभी भी 2% के नीचे नहीं जाता है. हाँ, अभी सवाल ये आता है कि like even if the rates of interest reaches at 2%, which is actually very low, will the people prefer to hold the securities or cash? Now, at this point, when the expectation about the future fall in the security prices is high and widespread, everyone prefers to hold cash to gain from the future market situation. Now, children, if you would be able to analyze this diagram that is shown to us here, the diagram is like this. Okay, for the diagram, children, again the x-axis and the y-axis that they have shown here. Okay, so let me point them out. So this should be a x-axis, and as you can see, what's being shown on x-axis, children, so we are highlighting the demand for money. क्या दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Demand for money. अच्छा, वैसे same arrow, children, and we can construct the y-axis. So y-axis, children, it's showing the rate of interest. अच्छा, फिर अपना जो demand curve for money रहता है, as I already told you, children, it keeps on sloping downwards. किधर slope करेगा? Downward slope करेगा, children. Okay, now when it slopes downwards, what exactly happens here, children, is that, just a minute. Okay, so here, children, ये demand for money का curve जो downward slope करते जा रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये डाउनवर्ड गया,
अच्छा, what does this downward sloping demand curve show? That when the rate of interest is very high, क्या बोला देखा, when the rate of interest is very high, मतलब अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशंस में होगा क्या पता है चलो, the people are holding less money for speculative motive in them, right? अच्छा, लेकिन वहीं पे बच्चों लोग जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, क्या बोला, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, ये हमने थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो बच्चों लोग यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या हो गया, बढ़ गया. सो बच्चों लोग दिस इज समथिंग लाइक इनवर्स रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स. अच्छा, इमेजिन करना बच्चों लोग और थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, सो एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन द डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव हैज इंक्रीज्ड चिल्ड्रन. तो ये बढ़ता जाता है, मतलब पीपल होल्ड मोर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल. लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाता है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए बच्चों लोग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड नेवर फॉल बिलो 2%, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% के नीचे कभी फॉल नहीं होता. तो जैसे ही हमारा डिमांड कर्व फॉर मनी डाउनवर्ड स्लोप होता है बच्चों लोग, व्हेन इट कम्स टू 2%, कहां पे आएगा बच्चों लोग, 2% पे, तो द डिमांड फॉर मनी का कर्व बच्चों लोग इट इज गोइंग टू बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये देखो ये चला गया एंड इट इज बिकम स्ट्रेट, राइट? इसका मतलब क्या बच्चों लोग कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे आता है तो पीपल आर नॉट रेडी टू गिव एनी मनी टू द बैंक्स एंड दे वांट टू हेल्प और होल्ड द एंटायर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस. तो यहाँ पे बच्चों लोग पूरा का पूरा पैसा लोगों के पास फंस गया है एंड द बैंक्स विल नॉट बी अवेलिंग एनी मनी बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू लैंड. तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विडिटी लोगों के पास फंस जाता है बच्चों, और इसकी वजह से इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इट इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप. क्या बुलाया जाता है इसको, लिक्विडिटी ट्रैप. दैट मींस लिक्विडिटी हैज बीन ट्रैप्ड विद द पीपल. ओके, लेट्स सी व्हाट डज द एक्सप्लेनेशन से हियर चिल्ड्रन. नाउ फॉर द एक्सप्लेनेशन लेट्स रेफर टू द ग्राफ. सबसे पहले उन्होंने बोला कि लाइक L2 कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. ओके, कहां तक डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है वो हम लोग को पता है, अप टू पॉइंट T. इससे हम लोग को इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है बच्चों लोग, जो एग्जिस्ट करता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. पॉइंट टी पे जाके L2 कर्व सडनली बच्चों लोग हॉरिजॉन्टल हो गया, जो मैंने बॉक्स में दिखा है वो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है बच्चों L2 कर्व का, इट शोज द लिक्विडिटी ट्रैप. मतलब क्या बच्चों लोग यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव. सो पीपल प्रिफर टू होल्ड कैश instead of bonds due to the fear of an imminent decline in their prices. So at such low rate of interest, people prefer to hold any other asset or debt as the risk is far greater than the interest offered. So this is something like all the money is caught with the people. अभी आप सब लोगों को पता है कि like ये पैसा अगर बाहर निकलने का रहेगा तो the banks they have to increase the rates of interest, right? अच्छा, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों लोग एक्सप्लेन द लिक्विडिटी ट्रैप, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अलोंग विथ डायग्राम. ओके, नाउ विल जस्ट कंक्लूड विथ वन मोर कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, दैट इज द टोटल डिमांड फॉर मनी. अभी हम सब लोगों को पता है कि डिमांड फॉर मनी 3 अलग अलग मोटिव से आता है. सबसे पहला क्या है बच्चों लोग, ट्रांजैक्शन मोटिव. दूसरा क्या होता है, प्रिकॉशन. तीसरा क्या होता है, स्पेक्युलेट. तो चिल्ड्रन व्हाट विल बी द टोटल डिमांड फॉर मनी? नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज 3 मोटिव्स. मुझे ट्रांजैक्शन के लिए इतना पैसा लगता है, मुझे प्रिकॉशन के लिए इतना पैसा लगता है, मुझे स्पेकुलेशन के लिए इतना पैसा लगता है, तो मुझे टोटल में कितना पैसा लगता है. तो आई हैव टू एड अप ऑल द 3 मोटिव्स, और जो टोटल आएगा बच्चों दैट विल बी माय टोटल डिमांड फॉर मनी. ओके, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? सो हियर वी गो. The total demand for money, the aggregate demand for money arises out of 3 motives, and that is you all know, transaction, precaution and speculation. अच्छा, अभी पहले 2 मोटिव्स का डिमांड इंटरेस्ट इलास्टिक है, सॉरी इनकम इलास्टिक है, जबकि तीसरा जो अपना मोटिव है स्पेकुलेटिव मोटिव, दैट इज इंटरेस्ट इलास्टिक. तो द इक्वेशंस गो लाइक दिस चिल्ड्रन, MD इज इक्वल टू L1 इंटू ब्रैकेट्स Y प्लस L2 इंटू ब्रैकेट्स R. MD का मतलब होता है बच्चों लोग टोटल डिमांड फॉर मनी. व्हाट इज MD? टोटल डिमांड फॉर मनी. तो चिल्ड्रन L1 इंटू ब्रैकेट्स Y का मतलब क्या होता है? इट्स अ डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन मोटिव
both are dependent on the level of income. That is why into brackets children we have written it as y. फिर children L2 into brackets R. तो L2 का मतलब होता है चलो speculative demand for money, and as you all know it depends upon the rate of interest. That is why हमने brackets के अंदर क्या लिखा है R, which stands for rate of interest. ठीक है. So in Keynesian terms we can express the total demand for money as MD is equal to L1 into brackets YR. तो y लिखा हमने तो चलो इनकम आ गया मतलब ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन आता है, हमने वहां पे r लिखा मतलब इंटरेस्ट रेट आ गया, और जब इंटरेस्ट रेट आ गया तो चिल्ड्रन स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी भी आ गया. तो ये इक्वेशन चिल्ड्रन टेल्स यू अबाउट ऑल द थ्री मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एज वेल एज स्पेकुलेशन. अच्छा, अभी बच्चों हम लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं इधर फॉर ट्रांजैक्शन या फिर प्रिकॉशन, ओके. अच्छा, नाउ दैट विल बी नोन चिल्ड्रन एज एक्टिव बैलेंसेस. क्या बोलेगा उसको? एक्टिव बैलेंसेस, क्योंकि हम लोग उसको एक्चुअल में यूज कर रहे हैं बच्चों लोग, एंड इट विल बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम ट्रांजैक्शन. बच्चों अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरे ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, अगर मैं कम कमाता हूं तो मेरे ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे. बच्चों लोग प्रिकॉशन का भी वही है, अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूं तो फिर मैं ज्यादा पैसा प्रिकॉशन के लिए रखूंगा, अगर मेरा इनकम ही कम है तो फिर मैं कम पैसा रखूंगा बच्चों लोग प्रिकॉशन के लिए. हाँ, लेकिन स्पेक्युलेटिव डिमांड के लिए जो पैसा यूज किया जाता है उसको हम लोग एक वर्ड यूज करें चिल्ड्रन, इट इज नोन एज आइडल बैलेंस. हमने पैसा बच्चों लोग सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में डाल के रखा है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्सली रिलेट करता है, वो तो मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया है. ठीक है. सो सवाल ये आता है बच्चों लोग के लिए टोटल डिमांड फॉर मनी का डायग्राम क्या आएगा करके. व्हाट विल बी द डायग्राम फॉर द टोटल डिमांड फॉर मनी. सो Here it goes children. सबसे पहला वाला जो इन्होंने लिखा है इसको क्या लिखा है देखो, एक्टिव कैश बैलेंस. क्या लिखा है? एक्टिव कैश बैलेंस. लेट मी सी हाउ द डायग्राम इज प्रिपेयर्ड हियर. ये बच्चों अपना एक्स एक्सिस, राइट, क्या बताए वहां पे एक्टिव कैश बैलेंस, और एक्टिव कैश बैलेंस का मतलब आपको पता है इट्स लाइक ट्रांजैक्शन या फिर प्रिकॉशन. वाई एक्सिस पे बच्चों हमने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. एज यू ऑल नो चिल्ड्रन that the demand for money for transaction and precaution has got nothing to do with the rate of interest in the market, and that is why हमारा curve जो तैयार होगा यहाँ पे बच्चों लोग, it is going to be perfectly inelastic curve. जैसे कि आप देख रहे हो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, it's the perfectly inelastic curve. इसका मतलब कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में कितना R1, what is the rate of interest? R1. तो R1 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, तो व्हाट इज द डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन? सिंपल चिल्ड्रन, इट्स OM. अच्छा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखो मार्केट में R2, और जैसे हम लोग देखते हैं R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपका डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन अभी भी कितना है? OM. दैट मीन्स चिल्ड्रन द डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू, has got nothing to do with the rate of interest, and that is why we say children that the demand for active cash balances is purely interest inelastic, right, and it is income elastic. अच्छा, तो एक्टिव कैश बैलेंसेस में चलो दोनों भी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, इट्स लाइक ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रिकॉशन. अच्छा, सेकेंड वाला जो डायग्राम हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है चिल्ड्रन, उसको जरा हम लोग देखते हैं कि लाइक नीचे पहले क्या लिखा हुआ है. So children, they have written there as idle cash balance. अभी idle मतलब पता है ऐसे ही रखा हुआ पैसा. ये हो गया आपका x axis which is idle cash balance. अच्छा, उसके बाद में चलो ये हो गया आपका y axis which is nothing again but the rate of interest. अच्छा, फिर अपना demand for money का curve जो आता है, I have already told you children that it will be sloping downwards. तो ये होता है चलो demand curve for money. Just overlapping it, right? अच्छा, और इसने क्या प्रूव किया है चिल्ड्रन, that when ये देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों लोग हाई है, राइट, तो वहां पे आपने देखा कि आपका डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंसेस कम होता है. लेकिन जैसे ही आपको दिखेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो गया है, कितना हो गया? R2. तो ऐसे सिचुएशन में चिल्ड्रन आपका डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव या फिर आइडल कैश बैलेंसेस बढ़ जाता है. और ये जो इनवर्स, इससे क्या पता चलता है बच्चों लोग? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडल कैश बैलेंसेस.
मतलब चलो मुझे लगता है पहला वाला डायग्राम है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन का, और दूसरा वाला डायग्राम है स्पेसिफिकली एंड पर्टिकुलरली अबाउट स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो ये पहला वाला डायग्राम क्या है चिल्ड्रन, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन, दूसरा वाला क्या है स्पेक्युलेटिव। तो तीनों को मिला के बच्चों हम लोग और एक डायग्राम बना सकते हैं विच विल बी द एडिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डायग्राम, एंड दैट्स नथिंग चिल्ड्रन बट द ट्रांजैक्शन मोटिव दैट वी द टोटल डिमांड फॉर मनी, राइट। अच्छा, नाउ हियर चिल्ड्रन इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, हमने ये कर्व को डाउनवर्ड स्लोप करके दिखाया हुआ है। सो चिल्ड्रन द कर्व कीप्स ऑन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। कब तक बच्चों लोग, लिक्विडिटी ट्रैप तक। ये देखो इसके आगे बच्चों लोग ये कर्व क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे बच्चों लोग ये कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को, एंड दिस इज चिल्ड्रन नथिंग बट द टोटल डिमांड फॉर मनी। क्या ये टोटल डिमांड फॉर मनी। सो चिल्ड्रन हियर एक्सप्लेनेशन क्या दिया है देखना, द फिगर अबाउट शोज OM is the transaction and precautionary demand for money at Y level of income and the different rate of interest. दूसरे वाले डायग्राम में shows the speculative demand for money at various rates of interest. और figure 3 will show the total demand curve for money and it represents the liquidity preference schedule of the community. How much money do people prefer, that we actually understand through the third diagram. तो पहला और दूसरा डायग्राम मिला के बच्चों लोग तीसरा डायग्राम तैयार हो गया यहाँ पे। So children, if you just sum up, like you might be asking me like, sir, what are the answers to be analyzed in this particular chapter? So let me inform you children, that is if you are studying this chapter, ये दोनों भी chapter children related है। पहला वाला हमने जो पढ़ा वो क्या था, सप्लाई ऑफ मनी, वहां पे हमने मनी सप्लाई का मीनिंग देखा। अच्छा, फिर दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे ना, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। Then we saw children what are not included in money supply. Money supply does not include. फिर हमने देखा था determinants of money supply. Then we had the velocity of money circulation, income velocity था, transaction velocities थे, right? अच्छा, then we started with this chapter children, which is the demand for money. अगर supply of money children it originates from the monetary authorities, that is Reserve Bank of India, government and the public, then the demand for the commercial banks, then the demand for money will actually originate from the people. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था बच्चों क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच, as I told you children, it's entirely focusing or emphasizing on the transaction demand for money. J.S. Mill, right? Then Irving Fisher, David Ricardo, they had given the classical approach. So people feel that people require money just because they have to carry out the day-to-day transactions. फिर हमने देखा था कि व्हाट इज द केन्शियन अप्रोच, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया हुआ था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट। सो केन्स के हिसाब से पीपल डिमांड मनी फॉर 3 डिफरेंट मोटिव्स। सबसे पहला, लोगों को पैसा क्यों लगता है, बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट द डे टू डे ट्रांजैक्शंस। दूसरा चिल्ड्रन, लोगों को पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, सो फ्यूचर इज अनसर्टन, दैट इज व्हाई पीपल हैव अ हैबिट ऑफ होल्डिंग सम मनी विद देम सो दैट दे कैन यूज इट फॉर meeting the unforeseen contingencies which might come in the future. और इसके अलावा ये दोनों भी फंक्शंस हमने देखा था बच्चों, they are related to the medium of exchange, feature of money and the store value of money. Here children, the last one that's called as the speculative motive. ये बताता है कि पैसे को स्टोर करके रखोगे तो उसका वैल्यू बढ़ सकता है, so it's related to the store value of money. फिर हमने पढ़ा लिक्विडिटी ट्रैप वाला आंसर, जहां पे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है चलो तो डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव विल बी लेस, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव बढ़ता जाएगा, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू केन्स डू नॉट फॉल बिलो 2%। तो जैसे 2% पे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला कर्व बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो पैरेलल पार्ट जो होता है चलो डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का, उसको हम लोग बुलाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। एंड देन वी came around children studying what is called as the total demand for money. So total demand for money ka question bhi they might be asking you in the exam, right? So this is all you're going to study from these 2 chapters children. The next वाला जो chapter रहेगा money and prices, okay? और उसके बाद में अपना एक और chapter जो 2 parts में divide किया हुआ है children, it's like inflation part 1 और inflation part 2. So coming few lectures, the 4 or 5 more lectures children, and we'll be completing with a semester 3 ka portion, and you should be ready for exams. However they take, they may take, they may not take, but hope so you all know that without exams you won't be clearing it up. So exams will be there. When, how,
we will let you know children, but keep studying. Okay, so since this topic is over, इसका आगे का part हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो we will be winding up here children, और फिर next lecture see you with chapter number 15, that's money and prices. Bye everyone, take care, see you in the next